I will let the audience now take it on from here. I will ask for people to ask questions one at a time. My request is, please keep your questions brief. Please don't make long speeches. My question is to Mr. Rao. While as an Indian, you are disturbed when there are remarks made by various parts of the society, but there's a deafening silence when it comes to people like Yogi Adityanath, who make remarks which are extremely invidious when it comes to dividing society on the basis of dharma, children, etc. So what is your take on this? Shall we take a few questions or do we do one question at a time? मेरा नाम राकेश है सर। जैसा कि आपने बताया कि आपका बेटा जो है अमेरिका के किसी मतलब पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और आप इंडिया में क्या कर रहे हैं, यहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी में आप लगातार फंड कट किए जा रहे हैं। आप यूजीसी गैजेट के थ्रू जो है आप सीट कट कर रहे हैं और उसके बाद अगर हम सड़कों पे उतर रहे हैं, हम इसको रोल बैक कराने के लिए सड़कों पे उतर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो आपकी एपीवीपी आके हमें मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमें आके वो लाठी डंडे और रॉड से मारते हैं और उसके बाद पुलिस जो है चुपचाप वहाँ खड़ी रहती है। एक गांव देहात से आते हैं यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ने, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा सर? आप तो मतलब यहाँ के पब्लिक यूनिवर्सिटी में लगातार ये फंड कट कर रहे हैं सर, सीट कट कर रहे हैं। This question is directed at Mr. Rao. I want to ask you that can you comment on the fact that this government, or basically as he talked about, the other friend of ours talked about the education cuts, the UGC, the non-net fellowship was cut, and then you see, how the seats are being cut in the university in which OBC expansion was not even done. And my point, what I want to ask is that, can you tell that, can you justify that education is not being trying to make a commodity for us? Mr. Rao, can I request, there are two basic things here. One is Yogi Adityanath and the other is cutting seats in public universities. You see, I am a party spokesperson, so therefore what the policies, education policies, and my son studying somewhere doesn't have anything to do with the policy here. I have no role whatsoever to play in this. But as a government, we are committed to, you've seen how we are committed to the education sector, and primary education continues to be a challenge for us. Okay, at the same time, it doesn't mean that we can really de-emphasize any other either technical or university education. And there is no reason, I don't know why a particular student organization would be in favor of a policy and other student organization would not be in favor of it. I find it rather strange. I know if that situation actually exists, I'm sorry, I'm ignorant about it, but I think students and college campuses would rather do well to raise these issues rather than the track that we have taken. But if there are, honestly, I would concede I'm not fully familiar with this issue. I will need to really understand the reasons behind it. Okay? And as far as your first question is concerned, Yogi Adityanath, you will have to take a particular, you see, you cannot. He's also been a multiple term elected member of parliament. And not everything that he says should be objectionable. But there may be certain comments which you would find objectionable. And there are some comments made by some members of our own party, or some members of parliament of our own party. We distance ourselves with them. Okay? But beyond that, you cannot really do much. We have clearly distanced and we give a signal to them. There is certainly, I would say such comments at least have reduced in their intensity compared to what they used to be. But there, for example, there was a comment about the girl, about Gurmeher by a member. So we said, no, we certainly don't accept that. We certainly think that was, that's a comment a comparison with somebody is completely avoidable, objectionable, and actually I would say condemnable. So, but statements made by members of parliament, you will have to see, unless you cite a particular comment, I will not be able to give my party position on this. Can I supplement these two questions? One is, keep asking. One is, it's not questions, maybe I'm giving you information. You said you are not aware of or you are ignorant of a particular student organization may take this position and may take that position. As a person who's been involved in education for a long time, I can assure you there are student organizations which take differing positions on multiple issues, and some of them take different positions in different locations. So
I am a little surprised that you are ignorant. I thought you were much more knowledgeable than that. Anyway, number two. I have no difficulty in accepting. No, that's fine, that's fine. Number two about Yogi Adityanath or... We don't debate such topics on television. I think I've been a spokesperson for 3 years. Had this come up at least once on television, I would have been thorough with the subject. No, So Mr. that itself shows. I made a comment on the media. I have been a part of it myself, but such issues don't really find a place. Mr. Rao, may I then also respond again that what comes up in television debates may not be the reality of this country. I agree. Therefore, I agree. Therefore- All this does not. You see, most Sir, of the time therefore- we are sir- attacked in the media, Sir- but people continue to elect us. you're saying that because it does not come up in the media in the last 3 years, you are not aware of it, and by implying that that is not an issue, I'm only saying है और भी ज़माने में कब मोहब्बत के सिवा टीवी डिबेट के अलावा और भी देश की असलियत है. आपकी टॉपिक तो बहुत आता है. Secondly, about members of parliament belonging to party A, B or C saying objectionable things, and a party spokesperson saying, other than giving a signal, we can do nothing about it. I feel very sad hearing this, because I thought parties have a certain amount of discipline, and some parties have more discipline than other parties, but it is the party's internal affair. I won't comment on it beyond that. Yes, sir. You have been very, very anxious to ask a question. माई क्वेश्चन टू मिस्टर सीवी जी. सर, अभी मैं आपकी स्पीच सुन रहा था. आपने 3 पॉइंट्स बड़े परफेक्टली बोले. फर्स्ट था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच अभी अगर नहीं है तो ये लोग कैसे बोल रहे हैं सर. तो मैं इसमें एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर नहीं है तो फिर कुछ बोलने पे भी देशद्रोही क्यों बोला जाता है अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो. क्योंकि पहले भी ऐसे गवर्नमेंट्स हुई हैं, उनसे भी क्वेश्चन किया जाता था. आप भी करते थे जब आप विपक्ष में थे, या दूसरी पार्टियां भी करती थी. अटल जी की भी गवर्नमेंट आई थी तब भी थी. पर कोई क्वेश्चन पुट करने से उनको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा या देशद्रोही बोला जाएगा, ऐसा नहीं था. अगर ऐसा है और नहीं है अगर बोला जाता तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है. फर्स्ट थिंग. सेकेंड, आपने बोला है कि अब्यूजिव के आप खिलाफ है, जो लोग अब्यूजिव किया अभी गुरमेहर को. तो शायद आप इफ़ यू सी इन द सोशल मीडिया, कई ऐसे अब्यूजिव आपके खुद के वर्कर्स हैं ऑन सोशल मीडिया जिन्हें खुद मोदी जी ट्विटर पे फॉलो करते हैं. अगर आप उनके अगेंस्ट हैं तो आपको उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, मोदी जी को बुलाना चाहिए इफ़ यू आर अगेंस्ट दैम. थर्ड पॉइंट बोला आपने नेशनलिज्म. आपने बहुत जोरदार इस पर स्पीच दी. मैं ये कहना चाहता हूँ वो नेशनलिज्म तब कहाँ जाता है जब आप अफजल गुरु को हीरो कहने वाली पार्टी के साथ सरकार बनाते हैं. वो नेशनलिज्म तब कहाँ जाता है जब बुरहान वानी को के भाई को मुआवजा देने वाली सरकार के साथ सरकार बना के बैठते हैं. वो नेशनलिज्म तब कहाँ जाता है जब उस इंसान को मंत्री पद की शपथ दिलाते हैं जो ये कहता है कि जब एक भारतीय फौजी मरता तो मेरे घर में ईद बनती है. वो नेशनलिज्म तब कहाँ जाता है जब आप ही के पार्टी के 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 11 लोग ISI की जासूसी में पकड़े जाते हैं. तो अगर आप नेशनलिज्म की बात करते हैं तो वो नेशनलिज्म हमें तब दिखेगा जब आप एक आंख से नहीं दोनों आंखों से देखेंगे. वो चीज़ आपके नेशनलिज्म तब दिखता जब अफजल गुरु को उन्होंने जब हीरो माना था, आप उस दिन आप विड्रॉ करते उनसे गवर्नमेंट को, या आप बुरहान वानी के मुआवजे को रोकते, तब आपका नेशनलिज्म दिखता. और नेशनलिज्म तब दिखता जब वो 11 जो आतंकी पकड़े गए आप खुद उनके ऊपर NIA की जांच बिठाते. ये मेरे आपसे क्वेश्चन है. अब देखिए, यही आप स्टूडेंट है, मैं मानता हूँ, शायद स्टूडेंट है या काम भी करते हैं, बट लेकिन नहीं, मुझे उसका और कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे. बट लेकिन इस देश में यही दौर चल रहा है तो ये राजनीतिक पार्टियों में चलता है, ये खूब चलता है, क्योंकि टेलीविजन के माध्यम से हम लोग एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप में लगा, आरोप का जवाब प्रत्यारोप से किया जाता है. बट मेरा आपसे निवेदन ये है, यदि आप नेता नहीं हैं, आप पूछिए, जो वो हमारा जितना कोसना है आप कोसिए, उसका आपका पूरा अधिकार है. बट लेकिन जिस प्रकार की वहाँ नारे लग रहे हैं, जो व्यक्ति इस प्रकार की नारा, क्या इसके पक्षधर है या नहीं है, मुझे सिर्फ इतना ही समझना है. आप हमें कितना कोसना है कोसिए. हम एज ए राजनीतिक दल, हमारे यहाँ कुछ मजबूरियाँ भी हैं, मैं बताता हूँ. क्योंकि एक राज्य में जहाँ चुनाव हो गया है, जम्मू कश्मीर में 70-80% लोग चुनाव में वोट किए हैं, ऐसे परिस्थितियों में, और ऐसे राज्य में सरकार को बिठाना एक सरकार, केंद्र सरकार का भी एक दायित्व है.
हम राष्ट्रपति शासन लगा के इनडायरेक्टली दिल्ली से सरकार को चला सकते थे, हमारे पास वो ऑप्शन था। इसके अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन था? इसीलिए हमें समझौता करना पड़ा। उसमें हमने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, कॉमन एजेंडा फॉर गवर्नेंस हमें बनाया। ये राष्ट्रहित में किया है, ये कोई पार्टी हित में नहीं किया गया। आपको ये खराब लगता है, ये गलत लगता है, आप इसको आप गलत बताइए, बट लेकिन आरोप का जवाब प्रत्यारोप नहीं हो सकता है। जब तक आप हर आरोप को आप अपनी मेरिट पर आप उसको स्टडी नहीं करेंगे, इस प्रकार की एजिटेशंस चलते रहेंगे। ये कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य की स्थिति है जब एक दूसरे को ऊपर राष्ट्र विरोधी कहना पड़ता है। जितना आप उन पर आरोप लगा रहे हैं, उनका भी यही अधिकार है। जब आप कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की कोई लिमिट्स, बाउंड्रीज नहीं है, तो फिर उनका भी ये अधिकार है, जिससे मैं नहीं मानता, मैं कभी ये नहीं कहूंगा। बट लेकिन जो कह रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं इनका आवाज बंद किया जाए, इनके मुंह बंद किया जाए? आप किस अधिकार से ये कह रहे हैं? यही मेरा जवाब। एक छोटी सी, आपने जोश में ये कह गए आप कि अगर आप नेता नहीं हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि एक नागरिक को भी सब कुछ कहने का अधिकार है जो नेता को है। बिल्कुल नेता है। को कोई फालतू अधिकार नहीं होना चाहिए। नहीं, देखिए मैं इसका एक छोटा सा जवाब। नहीं, देखिए इसी मैं मंच से भी बोल रहा हूं, नेताओं का क्या है ना, हमें अपने कभी ना कभी अपने ऊपर जो आरोप लगता है उसे बचने के लिए दूसरे 4 आरोप लगाना पड़ता है। आप दूध से दुले नहीं हैं कह के उनको कुछ कहना पड़ता है। मैं अपील टू ऑल ऑफ यू इज, मैं जो कर रहा हूं, ये क्या मैं पूरी तरह इनको समर्थन दे रहा हूं या मेरा समर्थन क्वालिफाइड है? यदि मेरा समर्थन क्वालिफाइड है, तब आप उसको वेरी क्लियरली आपको ये कहना चाहिए। नहीं तो अननेसेसरी हम इस प्रकार के वाद प्रतिवाद में पड़े रहेंगे और इश्यूज कभी रिजॉल्व नहीं होंगे। इसका सबसे खराब चीज ये है कि आरोप प्रत्यारोप में पड़े रहेंगे। हम एजिटेशन करेंगे, आप एजिटेशन करिए, हम उल्टा एजिटेशन करेंगे, आप गाली देंगे, आप दीजिए, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो सबको समझना चाहिए मेरे जो पोजीशन है ये क्या है। एक साधारण नागरिक होने के बाद नाते आपसे इंडिविजुअली नहीं, सब नेताओं से मेरा ये कहना है, देश की समस्याओं को समाधान करने का उत्तरदायित्व नागरिकों पे तो है ही, नेताओं पे ज्यादा है। और आपका ये कहना नेता तो एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप करते रहे, नागरिक ना करें, ये दो धारी तलवार है। दिस इज डबल स्टैंडर्ड। मैं सिटीजन को हमसे ऊपर रख के बात कर रहा हूँ। देखिए, नेता का ये समझना कि मुझे ये अधिकार है और सिटीजन को नहीं, अधिकार की बात ये रोग की जड़ है। आप एनीवे, लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको मैं सही कम्युनिकेट नहीं कर पाया शायद। बोलिए सर, ये एलपीजी का प्राइस का हाइक जो जा रहा है, बस वो बता दो और कुछ नहीं चाहिए। नो पॉलिटिकल क्वेश्चन, नथिंग रिलेटेड टू एनीथिंग। देखिए, इसमें जो नॉन सब्सिडाइज्ड जो एलपीजी सिलेंडर जिनको मिलता है, जो गरीब है, उन पर कोई असर नहीं है। ठीक है, ये इसको 1 पैसा भी, इनका शायद 10-12 पैसा बढ़ा है। ग्लोबल मार्केट में जब प्राइसेस बढ़ेंगे, जब घटेंगे, ये बिल्कुल ऐसा हो रहा है। मार्केट लिंक इस प्रकार की प्राइसिंग मैकेनिज्म हम अडॉप्ट करते हैं। जब इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ेंगे तो इसमें इंक्रीज होगा, जब घटेंगे तो घटेगा। तो ये भी है, बट लेकिन हमने क्वेश्चन किया है जो गरीब नागरिक है, जिनके लिए सिटीजन, जिनके लिए सब्सिडाइज सिलेंडर दिया जा रहा है, उसमें कोई उनके लिए बोझ नहीं है। तो इतना हमने क्वेश्चन किया है, लेकिन सबके लिए ये करना सरकार के लिए संभव नहीं होगा। बट लेकिन ये मार्केट लिंक्ड है, तो जब घटेगा तब घटेगा भी, घटा भी है। इन माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द मॉडरेटर, लेट मी नाउ से, नरसिम्हा राव जी तो हमारे फेवरेट विपिंग बॉय हैं ही, उनको भी छोड़ेंगे नहीं। लेकिन मिस्टर गौरव गोगोई को थोड़ा जल्दी जाना है, वो बहुत देर से जाने की कोशिश में थे, मैंने उनको रोक के रखा। अब मुझे समझ में आया कि सारे सवाल नरसिम्हा राव जी के लिए हैं, तो अगर आप गौरव गोगोई जी से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो वो उनसे पहले पूछ लीजिए, ताकि उनको जाने दें हम लोग। आपका सवाल किससे है? हाँ, तो पूछिए। So it was a wonderful discussion about the nationalism and regionalism in the discussion right now. So my question is that do you find any intersection between the nationalism and regionalism politics happening? And if it is happening, how it is influencing the policy discourse, like the policy discourse outcomes? Another question, yes. नेशन बिल्डिंग का जो प्रोसेस चल रहा है, उसमें रिमोट स्टेट्स जैसे असम हुए या छत्तीसगढ़ हुआ,
इन राज्यों को किस तरह यहाँ के एस्पिरेशंस को नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस में जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए। दलित, आदिवासी, मजदूर, किसान, नौजवानों की जो वहाँ हालात हैं, उन हालात को मेन स्ट्रीम में कैसे लाया जाए। चूँकि आप दोनों लोग जनप्रतिनिधि भी हैं, अपने अपने एरिए से चुने हुए हैं और फील्ड में जाते हैं, आप लोगों की लड़ाई भी लड़ते हैं, उनकी वॉइस को भी सुनते हैं, और संजोग से किसी न किसी प्रोसेस में आप दोनों पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र भी रहे हैं। बावजूद आपकी संघर्ष की यात्रा हम लगातार देखते रहे। मेरा सिर्फ ये प्रश्न है कि अभी नेशंस बिल्डिंग के बदले इस देश में स्टेट बिल्डिंग का काम आज तक चल रहा है। वर्तमान सरकार है, किसी न किसी रूप में, कुछ लोगों को बुरा लगेगा यहाँ, लेकिन सच्चाई है कि अधिनायकवादी प्रवृत्तियाँ पूरे देश में बढ़ रही हैं। इसको रोकने के लिए जो आदिवासियों की जो आवाज़ है, दलितों की जो आवाज़ है, गरीबों की जो आवाज़ है, उसको इस देश के मेन स्ट्रीम से कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए आप नौजवानों के पास क्या प्लान है? तरुण गोगोई जी से भी है यही प्रश्न और अमित जोगी जी से भी है। थैंक यू। पूरा डीजल पेट्रोलिंग का पूरा प्राइसिंग इन्हीं की सरकार में जो गैस कंपनीज हैं या जो इंडियन ऑयल कंपनीज हैं उनके हाथ में दे दिया था। ऐसा क्या करने की क्या ज़रूरत थी कि आप जो पूरा अपने हाथ से डीजल और पेट्रोल प्राइसिंग आपने उनके हाथ में दे दिया, और अब जब बात करते हैं तो आप कहते हैं हमारा क्या कसूर है, हमारी तरफ से तो कुछ भी नहीं हुआ, हमने तो प्राइसिंग को हमारे हाथ में ही नहीं है। ये आपके उसमें हुआ था कि ऐसे बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिसका आज हम ठीकरा शायद बीजेपी पे तो फोड़ सकते हैं, लेकिन उसका कहीं ना कहीं एक जो रूट है वो कांग्रेस से निकलता है। ठीक है, वुड यू लाइक टू आंसर दीज 3 questions? The first question, do I see any difference between nationalism and regionalism? See, my question is, when it comes to nationalism, nationalism defined by the RSS. RSS का जो nationalism है, उससे मैं सहमत नहीं रहता। और मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद आप किताब पढ़िए, खुद आप इनके जो फाउंडिंग जो इनके फिलॉसफीज हैं वो पढ़िए। इनका जो आरएसएस का जो नेशनलिज्म जो है, इट इज़ एंटी मुस्लिम, इट इज़ एंटी क्रिश्चियनिटी, इट इज़ एंटी कम्युनिस्ट, इट इज़ एंटी लिबरल। इनके जो नेशनलिज्म है, जो भारत का जो भारतीयता है, इसमें मुझे कोई वो समानता नहीं दिखता। इनका एक नेशनलिज्म है जो आरएसएस का नेशनलिज्म है। आरएसएस, बीजेपी नहीं बोल रहा, आरएसएस बोल रहा, आरएसएस द मदर, द पेरेंट। आरएसएस का जो नेशनलिज्म है इज अ फोर्स नेशनलिज्म, इज अ सिंबॉलिक नेशनलिज्म। भारत माता की जय बोलो, खड़े हो राष्ट्रीय गान करते हुए। सिंबल्स, ये जो सिंबल्स हैं, जब से इनका जन्म हुआ है 1925 में, काउ प्रोटेक्शन, बीफ कंजम्पशन, फोर्स कन्वर्जन, 1925 से 2016 तक आगे इशू वही है। तो ये खाली सिंबलिज्म का है। इनमें जो धार्मिक कोई इनमें देयर इज नो स्पिरिचुअल फाउंडेशन, देयर इज नो स्पिरिचुअल फाउंडेशन ऑफ मोक्ष, देयर इज नो स्पिरिचुअल फाउंडेशन ऑफ धर्म, देयर इज नो स्पिरिचुअल फाउंडेशन ऑफ यूनिवर्सल लव एंड कंपैशन। अरे धर्म, हिंदू धर्म में कहते हैं कि क्रोध तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और इनकी अगर भाषण हम सुनेंगे हिंदू राष्ट्रवाद की, वो तो क्रोध ही पैदा करते हैं। किसके विरोध, वो आप लोगों को भी पता है। तो इनका जो एक आरएसएस का जो नेशनलिज्म है, इट इज अ नेशनलिज्म हुज फाउंडेशंस, एज वाज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेशन, इज बेस्ड अपॉन जर्मनीज एथनो नेशनलिज्म। हमारे भारतीयता के साथ इनका कोई संपर्क नहीं, इसलिए मैं इसे भारतीय रीजनलिज्म से मैं इससे ताल्लुक नहीं देखता। पॉलिटिकल फंडिंग की बात की, मुझे तो लगता है कि पॉलिटिकल फंडिंग ट्रांसपेरेंट होना ही चाहिए, कि आपको भी पता चले कि भाई कांग्रेस को कौन दे रहा है, बीजेपी को कौन दे रहा है, आप पार्टी को कौन दे रहा है, सब अपना लिस्ट निकालो। अब मैं बताता हूं कि कोई ऐसे डोनर्स हैं जो कांग्रेस को भी देते हैं, बीजेपी को भी देते हैं, वो अपना नाम खुलासा नहीं करना चाहते क्योंकि इन्होंने दोनों तरफ से मिला के रखा है। सो सम डोनर्स ऑल्सो डोंट वांट political parties. In the end, I think it is in our, forget our interest, it's in our country's interest, it becomes transparent. वो ट्रांसपेरेंट कैसे हो, आरटीआई के द्वारा आए, हम इलेक्शन कमीशन को दे, हम अपने वेबसाइट पे दे, अकाउंटिंग थर्ड पार्टी ऑडिटिंग कराएं, वो रास्ता हम निकाल सकते हैं, पर ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए।
और हमें भी ये देखना चाहिए कि देखिए एक इलेक्शन में कितना खर्च हो रहा है। अब ये डिमोनेटाइजेशन की बहुत बात बोला, काला धन पे सर्जिकल स्ट्राइक, काला धन पे सर्जिकल स्ट्राइक। क्या यूपी के इलेक्शन में काला धन नहीं यूज हो रहा? क्या यूपी के इलेक्शन में जो इलेक्शन लिमिट्स हैं क्या उनको माना जा रहा है? तो खाली भाषण के लिए ये है काला धन पे आक्रमण अभी भी निर्वाचन में चल रहा है। तीसरी चीज, स्टेट्स को, जो रीजनल स्टेट्स हैं जो ऐतिहासिक रूप से विभिन्न कारण के लिए देश के साथ आगे नहीं बढ़े हैं, मुझे लगता है उनको विशेष रूप से देखना चाहिए। खास करके अगर आप असम में देखें, असम जब भारत स्वतंत्र हुआ था कि असम की एक इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन बहुत ज़बरदस्त थी, क्योंकि वहाँ पे चाय था, तेल था, लकड़ी का व्यवहार था, तो बहुत है। लेकिन जब पार्टीशन हुआ, जब वेस्ट पाकिस्तान आया, ईस्ट पाकिस्तान आया, तो उससे पूरा एक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी और एक मानसिक एक पिछड़ा असम और उत्तर पूर्वांचल में आ गया है, जो एक ऐतिहासिक कारण के लिए असम और उत्तर पूर्वांचल के अनेक राज्यों, जिस समय भारत 90s में आगे बढ़ रहा था, वह असम और उत्तर पूर्वांचल में विभिन्न प्रकार के सोशल और एथनिक टेंशन थे। तो मुझे लगता है कि इन क्षेत्रों को हमें विशेष रूप से देखना चाहिए, विशेष सुविधाएं आगे बढ़ानी चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है कि आज 14 फाइनेंस रिकमेंडेशन के द्वारा अजम्पशन ये है कि असम उतना ही विकसित है जितना गुजरात है। असम और गुजरात और असम और महाराष्ट्र को एक समान तरीके से देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ जो नए नए राज्य हैं उनको समान रूप से देखा, समान नहीं है। गुजरात में उस प्रकार के जियोग्राफिकल आइसोलेशन नहीं है जो नॉर्थ ईस्ट में थी। गुजरात में, महाराष्ट्र में उस प्रकार की पॉलिटिकल एथनिक इंसर्जेंसी नहीं है जो नॉर्थ ईस्ट में थी। गुजरात, महाराष्ट्र में जिस प्रकार का चाइनीज का इन्फ्लुएंस है, आईएसआई का इन्फ्लुएंस है, नॉर्थ ईस्ट में उस प्रकार का नहीं है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु कुछ ऐसे राज्य हैं जो जियोग्राफिकली, हिस्टोरिकली आर मोर प्रिविलेज्ड। तो अगर बैलेंस करना है तो असम और अन्य राज्यों को तो थोड़ा और विशेष रूप से देखना पड़ेगा, लेकिन अब विशेष रूप से देखना ही बंद कर दिया 14 फाइनेंस रिकमेंडेशन के द्वारा सबको समान। क्या असम और गुजरात समान है? आज मैं भी देख रहा हूं कि अमृत जैसे एक पॉलिसी है, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, 14 शहर में अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। गुजरात, महाराष्ट्र जो पहले से विकसित राज्य है, वहां पे 30 अमृत प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, 20 अमृत प्रोजेक्ट जा रहा है, और असम में 2, पूरे उत्तर पूर्वांचल में लगभग करीब 8-9। मतलब उत्तर पूर्वांचल को आप 8-9 प्रोजेक्ट दे रहे हो और गुजरात और महाराष्ट्र को 14, 15, 20 एक राज्य को दे रहे हो। तो एक असमानता जो पहले से ही है उसको आप अपने नीतियों से उसको और आप आगे बढ़ा रहे हो। आखिरी में जो आप बात थी, पेट्रोल प्राइसिंग की बात थी, डीजल की प्राइसिंग थी, मुझे पता नहीं है क्यों आप जीवल जी को लगता है कि हमारी याददाश्त कमज़ोर है, लेकिन जब तेल का दाम $100 था तो आपको भी पता है कि भारत में तेल का दाम कितना था। कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना सरकार का दायित्व है। आप मार्केट लिंक बोल के आप ये तो नहीं कह सकते कि हम कुछ कंज्यूमर ग्राहक को सुविधा नहीं दे सकते। जब तेल का दाम $100 से जब $50 तक आ गया या $60 तक आ गया, तो आपने क्या 30% बेनिफिट ग्राहक को दिया? तब आप मार्केट लिंकेज आपको याद नहीं रहता। हाँ, लेकिन जब कहीं 1-2 रुपए बढ़ गया तो आप भी 1-2 रुपए बढ़ाते। जब 30% गिरता है तब आप उस गिरावट, वो ग्राहक को आप भूल जाते हैं। गौरव जी, सवाल जो वहाँ से पूछा गया था वो ये था कि मार्केट लिंक प्राइसिंग जब हुई थी, जब यूपीए या सरकार, कांग्रेस सरकार में थी, वो क्यों किया गया था? आपने तो नरसिम्हा राव जी का तो जवाब बड़ा अच्छा दे दिया, लेकिन प्रश्नकर्ता का जवाब नहीं दिया। जो मार्केट लिंक जो पॉलिसी थी वो देखा जाया था कि कैसे हम धीरे धीरे हम जो हमारे जो बढ़ती जो सब्सिडीज़ हैं, उस सब्सिडी को हम कैसे उसको धीरे धीरे हम कम कर सकते हैं। लेकिन एकदम ट्रांसफॉर्मेटिव जंप नहीं लिया जैसे बीजेपी ने लिया कि $100 से $60 तक आ गया, तब वहाँ पे कुछ गिराया नहीं, खाली अपनी सब्सिडी बचाने के लिए। उस समय भी कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए सब्सिडी का एक बहुत हमने वजन लिया उस पर। लेकिन अर्थव्यवस्था पे हमारी अभी जीडीपी भी तभी भी देखें तो हमारा घटाव नहीं हुआ। आज अगर इनका नया जो नंबर आया है इस साल का 7.1% है। यूपीए की आखिरी वर्ष में इनके नए फॉर्मूला के अनुसार 6.9 है, 6.9%। तो ये तो आप 3 साल में वापस वहीं पे लेके आ गए।
तो विरासत की बात करते, ये तो पूरे विरासत पे वापस ही ले गए। इनको लेके जाना था आगे 9% तक, 10% तक लेके जाना था, डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ था, ये तो वापस वहीं पे आ गए। तो खासकर कि आई कम बैक टू माय मेन पॉइंट जो मैं ओपनिंग रिमार्क्स में बोला था कि हम देखिए, हम सब अपना अपनी बात हम रखेंगे, वी विल ऑल पुट आवर ओन पर्सपेक्टिव। आपको अपनी याददाश्त तगड़ी रखनी है, नहीं भूलना है कि प्रधानमंत्री जी ने क्या वादे दिए थे। आपको अपनी याददाश्त तगड़ी रखनी है, काम ये याद रखना है कि 140 मिलियन लोग पॉवर्टी के लाइन से निकले थे यूपीए सरकार 2004 से 2014 तक। पोलियो इरेडिकेट हो गया था। ये जो कुछ गोल्स हैं, ये जो कुछ सक्सेसेस ऐसे, याददाश्त तगड़ी रखनी है। ये चाहे जितना भी बोल दें कि आप क्वेश्चन मत करो, आपको क्वेश्चन करते ही रहना है। ये चाहे मीडिया को जितना बोले कि भाई हमारा थोड़ा अच्छा भी बोलो, मीडिया सर इज सपोज टू बी क्रिटिकल ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। आपके पास सत्ता है, बहुमत है, थोड़ा तो मीडिया को आपको पूछने का अधिकार दीजिए, बच्चों और नागरिक को अधिकार दीजिए। आप डरिए मत। ये पता नहीं क्यों अपने आप को हमेशा विक्टिम समझते रहते हैं। आपने मंत्रियों के खिलाफ कुछ कहा, अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ कहा। अरे प्रधानमंत्री और एक मंत्री के पास जितना एक पावर है, क्या एक गुरमेहर कौर में उतना पावर है? गुरमेहर कौर में क्या एक वो पावर है? उसको समान कर दिया कि भाई आप किसी मंत्री के खिलाफ भी तो कहा जाता है, अरे मंत्री के पास पूरा उसका सोशल मीडिया आर्मी है, मंत्री ने एक फोन कर दिया तो पुलिस भी भेज देगी। क्या उतना ही अधिकार, उतना ही वजूद गुरमेहर कौर के या किसी छात्र में है? तो हमें छात्रों और मीडिया को थोड़ा और नजर देखना चाहिए। आप ये विक्टिम कार्ड छोड़िए, आप 3 साल हो गए सत्ता में हैं, काम करिए, और अगर आप काम अच्छा करेंगे बेशक आपको समाज दोबारा आपको सरकार बनाने की सुविधा देंगे। आपके सवाल का जवाब ये है कि कांग्रेस ने बेशक कंपनियों के हाथ में प्राइसिंग दे दी हो, लेकिन बीजेपी से अच्छा ही किया था। चाहे वो खराब हो, लेकिन बीजेपी से अच्छा था। ना, नो आर्ग्यूमेंट्स प्लीज, नो आर्ग्यूमेंट्स। The question is, when you are saying that there is a lot of resource in Chhattisgarh, again the question is about land acquisition and tribal rights. So how we can hit a right balance between the two and progress Chhattisgarh in the right direction? Any other questions for Mr. Jogi? मिस्टर जोगी जी, आपने बोला कि छत्तीसगढ़ में डैम्स बन रहे हैं। आपके अगर स्टेट में रिसोर्सेज है, तो अगर स्टेट उनका यूज़ कर रहा है और इलेक्ट्रिफिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज़ कर रहा है, तो उसमें क्या गलत है? और आप राव साहब जी, आप बताइए, अगर आप डैम्स बना रहे हैं तो जो ट्राइबल्स है उनको डिस्प्लेस किया गया है, उनके लिए आप क्या रिसेटलमेंट कर रहे हैं या नहीं है? क्योंकि उनके स्टेटमेंट से लगता है कि आप नहीं कर रहे कुछ। ये तो आप मेरे जैसी बात कर रहे हो यार, दोनों को तब कर रहे हो, एक को तो करो, एक को छोड़ दो। यस जोगी साहब। I believe that the tribals of Bastar and Sarguja do not belong in a human zoo. अगर उनकी संस्कृति, उनकी एंथ्रोपोलॉजी के नाम पर उन्हें विकास की मुख्य धारा से पृथक रखना है, तो वो सरासर नाइंसाफ़ी होगी। डेवलपमेंट हैज़ टू बी sustainable. Unfortunately for us, and I am using the word with great care, unfortunately, ये हमारे लिए दुर्भाग्य है कि जिस धरती के ऊपर हम लोग वास करते हैं वो इतनी अमीर है। लोगों को हम नहीं दिखते, हमारी वो जमीन दिखती है, और उस जमीन के नीचे जो प्राकृतिक संपदाएं हैं वो नजर आती हैं। That for us is the unfortunate part. Whether it is Jharkhand, whether it is Chhattisgarh, all the minerally rich states seem to be performing the worst in terms of Human Development Index. And that is something we need to think about. Our very approach to development seems to be incorrect. It is based on wrong assumptions, wrong axioms. अब हमारे यहाँ पे NMDC का मेगा स्टील प्लांट लग रहा है। प्रधानमंत्री जी आए थे, जहाँ लग रहा है डिलमिली में, वहाँ से 300 किलोमीटर दूर दंतेवाड़ा में उन्होंने एक बटन दबा के उसका उद्घाटन भी कर दिया। उस क्षेत्र में पेसा का कानून लागू है, और पेसा का ये प्रावधान है कि दी ग्राम पंचायत shall have total control and management.
over their land, over their resources. वहां जो 12 ग्राम पंचायतें हैं जहां वो 30,000 करोड़ रुपए का मेगा स्टील प्लांट लगना है, उनसे तो पूछा तक नहीं गया। पोलावरम में बांध बनना है, उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दी गई। 70,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश की सरकार को दे भी दिया, लेकिन जो लोग प्रभावित होने वाले हैं वहां जन सुनवाई तक नहीं की गई। हम ये कह रहे हैं करो जो आपको करना है, पर कम से कम हमको बोलने का अधिकार तो होना चाहिए। हमारी बात सुन तो लीजिए, सुना तक नहीं जा रहा है। और जो अजय जी का प्रश्न था, दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। द नेशनल इंटरेस्ट एंड द रीजनल इंटरेस्ट कैन नॉट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अमेरिका में कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है, and I think we need this, perhaps is a discussion that should be confined to this hall of the Constitution Club. India, we may have evolved as a society, but there is a long distance between Shyam Narayan Chokse versus Union of India and Texas versus Johnson. ये दो जजमेंट हैं, एक हमारे सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और दूसरा अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। आप लोग सब इत्तेफाक रखते हैं जो अपने सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। सिनेमा जाएंगे, सिनेमा के पहले राष्ट्रगान होगा और राष्ट्रगान में सबको सावधान होकर खड़ा होना पड़ेगा। दैट इज द जजमेंट ऑफ आवर सुप्रीम कोर्ट एंड एज अ सिटीजन वी रिस्पेक्ट दैट जजमेंट। बट देयर इज अनदर जजमेंट delivered by Justice William Brennan, अमेरिका के चीफ जस्टिस थे। उन्होंने मेजॉरिटी ओपिनियन लिखा टेक्सास वर्सेस जॉनसन में। अमेरिका के नागरिकों को उन्होंने न केवल अमेरिकी झंडा फहराने का अधिकार दिया, बट विद इन द एम्बिट ऑफ द फर्स्ट अमेंडमेंट उसी झंडे को जलाने का भी अधिकार दिया। आई एम नॉट सेइंग दैट इंडियन शुड हैव दैट, but when we are talking about freedom of expression, then there should be no qualifiers. There should be no restrictions. There is a quotation in French attributed to Rousseau. I may not agree with what Mr. Narasimha Rao is saying, but I will defend to death his right to say it. अमर्त्य सेन जी ने एक पूरी किताब लिख डाली, आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन। जो लोग राम मंदिर बनाने की बात करते हैं, वो जब वाल्मीकि की रामायण पढ़ेंगे, 80% रामायण में राम के भगवान होने पर शंका बनी रहती है। 80% of the text, the discourse, the sage Jamali is questioning Ram's right to be a deity. That is our culture. We argue, but we must respect the argument of the other. It is all very politically right now to say that what the Supreme Court has done is right. But as a society, we need to evolve, go forward, and also go backward to our roots and celebrate our heterodoxy. बांध की जो आपने बात कही, all I am saying is that the principle of audi alterum, जो नेचुरल जस्टिस का एक सिद्धांत है कि दूसरे पक्ष को भी सुना जाए। अगर आपको हमारे खिलाफ कोई निर्णय लेना है तो हमारी सुनवाई तो होनी चाहिए, इतना ही हम बोल रहे हैं। एंड आई डोंट थिंक दैट इज एन अनरीजनेबल रिक्वेस्ट। 3 संस्थाओं ने ये ऑर्गेनाइज किया है, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। और इस तरह अलग अलग पॉलिटिकल विचारों को इकट्ठे लाना मेरे ख्याल में एक बहुत डिज़ायरेबल एक्टिविटी है, और आप इसको करते रहिए। आई विश मोर पावर टू यू। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।